to my channel Knowledge Booster. If you have been through my previous video, I had started models of communication where I have completed Aristotle model, Legan's model, Roger and Shoemaker model, and last one linear model, and many more. And in today's video, I'll be just covering few more models which I could not complete in my previous video, so that in my upcoming videos I could start with the topics theories of communication. And if you want all these presentations in the form of soft copy, you can just go and click on the link which is being given below in the description box. That is the link of SlideShare, from where you can go and just download these presentations and you can have these in the form of soft copy. If you have not subscribed my channel, please subcribe, like and share my channel so that other students like you can also get benefited from it, and they can also get notes for NET Home Science, and they can also study for it. Now let's begin with few more models in this video. In my previous video, I end with the linear model and David Berlo model. So just going on further, I would just provide you with the drawback of linear model. The drawback is that कि linear model कहता है कि communication is a one way process. That means कि जो sender है वो सिर्फ खाली message send कर सकता है, वो receive नहीं कर सकता. तो वो linear model का drawback है, that it assumes that communication is a one way process. So further model आया, तो next model आया interactive model. Wilbur-Scammon brought this model which says that receiver provides feedback to the sender. In this जो रिसीवर है, अब ये जो है इंटरैक्टिव मॉडल, ये क्या कहता है कि भाई जो फीडबैक है वो रिसीवर अब सेंडर को दे सकता है. तो जो ड्रॉबैक लीनियर मॉडल में था वो इसने इंटरैक्टिव मॉडल में रिकवर कर दिया कि भाई जो फीडबैक है वो अब जा सकता है. बोथ द स्पीकर एंड लिसनर टेक टर्न्स टू स्पीक एंड लिसन टू ईच अदर, एंड feedback is given both verbally and non-verbally, and model says that communication is better if they have common fields of experience. अगर वो same field के हैं तो communication is better, okay, and it indicates communication is a two-way process, ठीक है. And feedback is not simultaneous. Simultaneous means एक साथ. इंटरैक्टिव मॉडल क्या कहता है कि जो फीडबैक है वो एक साथ नहीं हो सकता है. कैसे? इंटरैक्टिव मॉडल ये बोलता है कि अगर सेंडर ने मैसेज भेजा है तो उसको वेट करना पड़ेगा कि कब रिसीवर देखेगा एंड वो कब तक भेजेगा. तो इंटरैक्टिव मॉडल के हिसाब से फीडबैक एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है. तो इसका ड्रॉबैक क्या है? इट डज नॉट इंडिकेट दैट बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन कम्युनिकेट मैसेज साइमल्टेनियसली. तो ये इसका ड्रॉबैक है कि भाई ये नहीं बता पा रहा है कि भाई फीडबैक एक साथ होगा. And it fails to show that communication is a dynamic process that changes over time. ये फेल करता है ये शो करने में, डायनामिक मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस. तो ये फेल करता है इस कि भाई जो कम्युनिकेशन है वो एक डायनामिक प्रोसेस है. Then comes the transactional model. Transactional model means that communication is an ongoing and communication process. अब जो ड्रॉबैक इंटरैक्टिव मॉडल में था वो ट्रांजैक्शन मॉडल ने कवर कर दिया कि भाई ये क्या बोलता है कि कम्युनिकेशन जो है ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है. एंड इसमें ये बोलता है कि जो एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के दे आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब वो एक दूसरे के भरोसे हैं. एंड ईच पर्सन इन द कम्युनिकेशन रिएक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स सच एज कल्चर, बैकग्राउंड एंड एक्सेट्रा, ठीक है. प्रायर एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, सेल्फ एस्टीम. ये बोलता है कि जो कम्युनिकेशन में है, जो पर्सन जो इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन में, वो रिएक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स. एंड दिस मॉडल ऑल्सो कंटेन एलिप्सिस दैट डिपिक्ट्स कम्युनिकेशन एनवायरमेंट. एलिप्सिस होता है कि भाई एक तरह से एनवायरमेंट, कम्युनिकेशन का जो एनवायरमेंट बताते हैं, ओके. तो वो है कि जो मॉडल है पूरा एक क्या कम्युनिकेशन का एनवायरमेंट है, क्या है, वो सारा बताता है. Then comes Osgood and Scammon model, and this model says that communication happens within yourself and between two people. Communication खुद में भी होता है and between two people भी होता है, that is intrapersonal and interpersonal, ठीक है. Wilbur-Scammon ने भी दिया था ये मॉडल, and it states that communication process is endless. मतलब इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है. तो स्कैमम क्या बोलता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस एंडलेस है. And this model presented by both not only shows the transmission and hearing of message but also offers explanation in how it can be understood. ये मॉडल ये बोलता है कि
इस मॉडल के हिसाब से खाली आपको ट्रांसमिशन या हियरिंग ऑफ मैसेज नहीं मिलेगा, लेकिन उस मैसेज का मीनिंग क्या है वो भी आपको समझ में आएगा। इसके मेरिट्स ये है कि भाई ये मॉडल समझता है कि कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस, रिडक्टेंट भी है, फीडबैक इसका मेन पार्ट है, एंड कम्युनिकेशन इज सर्कुलर इन नेचर। बिकॉज फीडबैक भी ये मेन पार्ट ले रहा है तो ये कम्युनिकेशन को सर्कुलर मान रहा है। डीमेरिट ये है कि डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सिमेंटिक नॉइज, ये किसी भी जैसे इनकोडर या डिकोडर या इनको किसी को भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। देन कम्स दी डी विट्रो इंटरेक्टिव मॉडल। इसका सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए, बाकी इसमें से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। डी विट्रो इंटरेक्टिव मॉडल में से एंड डेविड फॉल्गर में से कि भाई इट इज डिराइव्ड फ्रॉम information processive model and it includes 8 components: sender, receiver, message, channel, code, context, feedback, noise. David Folger क्या कहता है? Folger introduced ecological model and this model depicts that there exists a series of general relationship. Folger ने ecological model दिया है and इकोलॉजी अगर हम लोग बात करें तो इकोसिस्टम में क्या होता है, सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो फॉल्गर ने भी कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स है, जैसे मैसेज हो गया, लैंग्वेज हो गया, मीडिया हो गया, पीपल हो गया, उन सबको इसने बोला है कि सब इंटरलिंक्ड है। ठीक है। देन कम्स डांस हेलिक्स मॉडल, इससे क्वेश्चन आया है। ठीक है। फ्रैंक डांस एक्सप्लेन दैट कम्युनिकेशन इज लाइक हेलिक्स। हेलिक्स का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपने टाइफून देखा है तो वो क्या होता है, नीचे से छोटा एंड देन वो ऊपर से बड़ा 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 होता रहता है। तो डांस हेलिक्स भी ऐसा ही है कि ये बोलता है, फ्रैंक डांस ने इसको बोला है एंड इसको हेलिक्स से रिलेट किया है कि भी जैसे हेलिक्स में क्या होता है, नीचे छोटा पार्ट होता है एंड देन वो बड़ा होते 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 बहुत बड़ा हो जाता है। तो फ्रैंक डांस क्या बोलता है कि कम्युनिकेशन इज लाइक हेलिक्स in which it starts with a slow process and then communicators क्या करते हैं, शेयर करते हैं small portion of information and this gradually develops into next level expanding its boundaries but it will take some time. अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो जैसे मैंने अपना चैनल चलाया यूट्यूब पे, ठीक है, या आपने कोई भी चीज करी तो पहले वो कम लोगों तक जाएगा, फिर अगर वो चीज बहुत अच्छी हुई तो वो और स्प्रेड होगी, तो वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ, एक पर्टिकुलर टाइम के साथ। तो जैसे जैसे अगर वो चीज काम की होगी तो वो ऑटोमेटिकली स्पैंड होगी, अपनी बाउंड्री से बाहर जाएगी। तो इसने क्या किया, टाइम को महत्व दिया। इट इंक्लूडेड द कंसेप्ट ऑफ टाइम, दैट एवरीथिंग हैपेंस विद टाइम। जैसे जैसे अपन कहते हैं ना कि हाँ भाई टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतेगा अपना होती रहेगी चीजें, तो कोई भी अच्छी चीज होती है तो उसको होने में टाइम लगता है। डीमेरिट ये है कि ओवर सिंप्लीफिकेशन, ये हर चीज को एकदम सिंपल वे से, बहुत सिंपल वे से लेके चला गया। Then come Resle and Macklin model. This explains that communication does not begin with when single person starts talking, but rather when a person responds selectively to his or her surrounding. ये लोग क्या बोलते हैं कि कम्युनिकेशन ऐसे शुरू नहीं होता कि भाई चलो आपने किसी पर्सन को मैसेज भेज दिया एंड देन वो बातें करने लगे। नो, अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर वो फीडबैक दे रहा है, तो फिर क्या बोलते हैं, हाँ भी तब कह सकते हैं कम्युनिकेशन शुरू हुआ है। This model shows strong relationship between surrounding and process of communication. अब डिपेंड करता है कि पर्सन का सराउंडिंग कैसा है। अगर पर्सन का सराउंडिंग कह सकते हैं कि इलिटरेट है तो उनको वैसे ही कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, उनको समझ नहीं आएगा। लिटरेट है तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरिट्स, दिस इंक्लूड्स फीडबैक। सबसे पहला इसका प्लस पॉइंट ये है, यू कैन से प्लस पॉइंट, कि भाई वो फीडबैक को इन्वॉल्व करता है। दिस अकाउंट्स फॉर बोथ इंटरपर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन, क्योंकि इसने सिंस सराउंडिंग एंड कम्युनिकेशन को बोला है तो इसने मास कम्युनिकेशन को बोला है। अगर आप सराउंडिंग से डील कर रहे हो तो लॉट मेनी पीपल से करोगे, तो दिस अकाउंट्स फॉर बोथ इंटरपर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। इट इज प्रिडिक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, सही बात है, प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट है इसका, एंड डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है ये हर चीज का, क्योंकि सिंस हर चीज को रिलेट कर रहा है, हर चीज को इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है। दिस मॉडल इज बेस्ट इवन फॉर कम्युनिकेटर्स इन्वॉल्विंग मोर देन 2 सोर्सेज। रेस्ले एंड मैकलिन मॉडल एक बहुत बड़े ब्रॉड एक्सपेक्ट में हुआ है ये मॉडल, एंड ये बहुत ब्रॉड कंटेक्स्ट को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो ये बेस्ट, अभी अगर मान लो कोई 2 कम्युनिकेटर्स हो रहे हैं या 2 कम्युनिकेशन प्रोसेस भी हो रहे हैं तो ये मॉडल उसके लिए बेस्ट है। इसके डीमेरिट्स ये हैं कि दिस मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर टिपिकल कम्युनिकेशन दैट ब्रॉडर कंटेक्ट्स एंड वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन मैसेजेस।
इसका अगर मैं आपको और अच्छे से बताऊं तो रेस्ले एंड मैकलेन मॉडल, इसका डीमेरिट, हाँ ओके सॉरी, इसका डीमेरिट ये है कि दिस मॉडल will not be applicable for typical communication events that involve broader contexts and wide range of communication messages. तो इसका डिमेरिट ये है कि जो मॉडल है, ठीक है, अगर मान लो कोई बहुत बड़ा, बहुत ही टीडियस कम्युनिकेशन है या बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिकेशन है या कोई बहुत बड़े कंटेक्स्ट में है, तो इसके लिए ये क्या बोलते हैं, एप्लीकेबल नहीं है. एंड ये 2 डायमेंशनल मॉडल है. एंड मोस्टली ये क्या है कि सबको इन्वॉल्व कर रहा है. ओके एंड इसका ये है कि नॉन बाइनरी इंटरेक्शन है इस मॉडल में. तो हम इसको नॉन बाइनरी मतलब कि द मॉडल इज गुड इवन फॉर कम्युनिकेशंस इन्वॉल्विंग मोर देन 2 सोर्सेज. तो जो लास्ट लाइन है इसकी, दिस मॉडल इज बेस्ट इवन फॉर कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 2 सोर्सेज, तो इसको हम लोग नॉन बाइनरी इंटरेक्शंस भी बोल सकते हैं. थैंक यू. I hope you like my 10 minutes video. So I would just request you to please ask your queries and you just clear your concepts, and if not so, and if you have any queries, you can just drop me down in the comment box, or you can just mail me out, which is being given in my description box. Okay, so please ask your queries so that I will be pleased to answer your queries, and just give me a chance to answer your queries. And please ask your queries, and please make clear your doubts. I'm there to clear your doubts regarding home science, regarding the syllabus of NET home science, since I have completed most of the topic of communication. So if you have any queries regarding all these topics which I had completed, do ask. Okay, feel free to ask your queries.